Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question, and this questions is to be examined by the examiner in your final exam. बहुत ही important है, पेपर में पूछा जा सकता है और that's why I'm here and making the video on this question, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, ताकि आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ पाएँ और पेपर में अटेम्प्ट कर पाएँ। ये क्वेश्चन मैंने क्लास 11th यूनिट 2 काइनामेटिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 से लिया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दैट ए बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट नॉट जीरो एवरेज स्पीड। क्या क्वेश्चन है? आई एम अगेन रिपीटिंग, एक्सप्लेन दैट ए बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट नॉट जीरो एवरेज स्पीड। वो कह रहा है कि आप हमें ये एक्सप्लेन करें कि एक बॉडी इज इट पॉसिबल कि उसके पास एवरेज वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि इज दिस इज पॉसिबल फॉर ए बॉडी कि इट विल प्रोसेस जीरो एवरेज वेलोसिटी बट नॉट जीरो एवरेज स्पीड। इसको आप हमें एक्सप्लेन करें, हो सके तो एग्जांपल से समझाएं। तो चले स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द टू टर्म्स। First one is average velocity and the second one is average speed. My dear students, मैंने और पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था what is average velocity. You know very well what is average velocity. अगर हम बात करें average velocity, what is the formula for that? It is defined as the ratio of total displacement traveled by the body divided by total time taken. total time taken. क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। सेम मैनर से नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस traveled by the body to the total time taken. दोबारा सुने। Now what is the formula for average velocity and average speed? Average velocity is defined as the ratio of total displacement traveled by the body to the total time taken. Now what is average speed? It is defined as the ratio of total distance traveled by the body to the total time taken. अब हम बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल की जिससे हम ये समझेंगे कि एक बॉडी जीरो एवरेज वेलोसिटी को तो प्रोसेस कर सकती है लेकिन वो एवरेज स्पीड को कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगी इफ इट इज इन मोशन। सपोज मैं कहता हूं कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट से O. Suppose this is the circular path having the center point is say O and the radius is say R. मैंने मान लिया कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर पॉइंट O है और रेडियस क्या है R, and the body is to be moving in this circular path. Suppose this is the point A. यहां से बॉडी चली at time t is equal to 0 पे and it will cover a circular path after a certain interval of time say t. means after time t is equal to t पे या t dash पे it will again is to be at point say A. मैंने क्या कहा ध्यान से देखिए। एक सर्कुलर पाथ है। now this is the circular object circular path and the body is to be moving on this circular path with a some velocity having the center point is say O and the radius is say R. मैंने मान लिया कि इसका सेंटर पॉइंट O है और रेडियस क्या है R है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ थी? A पॉइंट के ऊपर थी और आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम से t डैश
it will be reached to the point at A. Means it will complete a circular path of radius r in a time interval say t dash, and it will be reached to the same point जहां से वो चली थी. तो अब ध्यान से देखिए, जो इनिशियल पॉइंट था वो था A, फाइनल पॉइंट क्या था A. Now what is the total displacement traveled by the body during this time interval? That is 0, क्योंकि displacement is the minimum distance between the initial and the final positions. तो initial position भी A थी, final position भी A थी, तो total displacement कितना हुआ 0. Total time taken, that is t dash, the result is 0. तो what is the average velocity possessed by the moving object on a circular path? That is 0. इसी तरह अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो what is total distance? That will become equal to the circumference of the circle, which is equal to 2 pi r upon t dash. So it has a some positive value. It means जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी और जिस पॉइंट से चली है, अगर वो वापस उसी पॉइंट पे आके खड़ी हो जाती है तो उस टाइम उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी और एवरेज स्पीड 2 पाई r अपॉन t डैश होगी. मीन्स इट हैज सम एवरेज स्पीड बट 0 एवरेज वेलोसिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है आपके फाइनल एग्जाम में. इसीलिए आज जो है मैं यहाँ इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ. और if it is to be asked by the examiner in your final exam, then you have to attempt it in a smooth manner. तो बड़ा ही important है. और so at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.